हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर से एक स्टॉक, जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी का शेयर का टारगेट क्या हो सकता है। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से मिल जाया करेगी। तो कंपनी का नाम है आइनॉक्स विंड एनर्जाइजिंग इंडिया। आइनॉक्स विंड is India's leading wind energy solution provider, servicing IPPs, utilities, PSU, corporates, and retail investors. Inox Wind is a fully integrated player in the wind energy market with three state-of-art of the manufacturing plants: Gujarat, Himachal Pradesh, and Madhya Pradesh, with a cumulative manufacturing capacity 1600 megawatt. The plant near Ahmedabad manufactures blade and tubular towers, while hubs and new nacelles are manufactured at the company facility at Yuna. The integrated manufacturing facility in Barwani, Madhya Pradesh manufactures blades। बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से, अच्छी खासी। इनके जो बिजनेस मॉडल है, टू बिजनेस मॉडल पे ये वर्क करती है: टर्न की सॉल्यूशन एंड इक्विपमेंट सप्लाई मॉडल। आइनॉक्स विंड अनवाइंड क्लीन एनर्जी, अनवाइंड हैप्पीनेस, बेहतरीन परफॉर्मेंस। की रीजन्स ऑफ सक्सेस, अनवाइंड पोटेंशियल। की रीजन्स ऑफ सक्सेस: एबिलिटी टू प्रोवाइड टर्न की सॉल्यूशन फॉर विंड फार्म प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, high quality WTGs based on sophisticated technology and design, strong order book and ready pipeline of project sites, efficient cost structure, strong management team, recognized and trusted corporate groups। Inox Wind बेहतरीन परफॉर्मेंस। कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे: आइनॉक्स डीएफ, आइनॉक्स डीएफ 100, आइनॉक्स डीएफ 113, डबल फेड इंडक्शन जनरेटर, increased power output and reduced reactive losses, superior power cars, patented integrated drivetrain incorporating rotor shaft and gearbox as a single unit with less turbine weight and less moving parts। ये सारे वन ऑफ द लार्जेस्ट रोटर डायमीटर्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम्स, technological enhancements such as using capacitors instead of battery banks with increased machine uptimes. All electrical components are sourced from reputed global supplier to ensure high efficiency and reliability of turbines. A very strong, energetic and experienced team comprising experts across all relevant fields। तो ये कंपनी जो है विंड एनर्जी में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, आइनॉक्स विंड। एक बार हाइलाइट्स कंपनी की देखें, ऑपरेशनल हाइलाइट्स: द कंपनी हैज बिकम EBITDA पॉजिटिव आफ्टर 3 consecutive क्वार्टर्स ऑफ नेगेटिव EBITDA। तो कंपनी का कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स नेगेटिव EBITDA, 3 consecutive क्वार्टर्स के बाद में अब इनका जो विविधता है वो पॉजिटिव नजर आया है। द बिजनेस इज ग्रेजुअली गेटिंग बैक ऑन ट्रैक as a result of ramp up in new supplies. Manufacturing operations are streamlined across all the plants and are fully geared up for upcoming ramp up in supplies. We expect high growth Q4 onwards on the back of new supplies for the existing order book as well as commissioning revenues. Significant repeat order are on a verge of closure. Expect announcements shortly. Multiple retail order won किए हैं कंपनी ने, जीते हैं, which will result in liquidation of stocks up inventory and free up our working capital। इनके पास में जो कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है 1328 मेगावाट की इनके पास में ऑर्डर बुक अभी है इस समय। और ऑपरेशनल हाइलाइट्स अगर आप देखेंगे: एक्विजिशन ऑफ कंटिनम project is in full swing. Commissioning of turbines will take place progressively in the near future. We have recently commissioned renewable power भी इन्होंने recently commission किया 18 मेगावाट का अंजर में, इन गुजरात में, some small retail orders के लिए। Post receiving the requisite approval and equity allocation of IDI
IWI, Inox Wind is progressing well. We have achieved financial closure on for uncommissioned 100 megawatt for SCCI SPV with PFC. With this enable 15 मेगावाट अनकमीशन एसपीवी। तो अभी इन्होंने एक अभी कमीशन करना है 100 मेगावाट का और प्लान है इनके पास। और ऑल फ्यूचर प्रोजेक्ट एक्विजिशन और दयापुर इंक्लूडिंग द कंटिन्यूम ऑर्डर विल बी ऑन अ प्लग एंड प्ले बेसिस given the common infrastructure which includes 220 kV transmission line. The 220 kV substation are already in place. तो फ्यूचर प्रोजेक्ट एक्विजिशन भी कंपनी के पास में है। अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी ने इस बार दिखाया है, इस बार के Q3 में, और आगे आने वाले टाइम में भी कंपनी इसी तरीके के परफॉर्मेंस दिखाती हुई नजर आएगी, ऐसा मैनेजमेंट बोल रहा है। सिग्निफिकेंट मार्केट अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखेंगे, ग्लोबली देयर इज ए ह्यूज ट्रस्ट ऑन रिन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस द वर्ल्ड। द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी today is the lowest within the energy basket. Recently, the USA has rejoined the Paris Climate Accord. Tackling climate change and ESG compliance today are global priority. तो इस समय जो है ग्लोबल प्रायोरिटी है, क्लाइमेट जिस तरीके से चेंज हो रहा है उसको बचाने के लिए। इंडिया हैज अनाउंस्ड अ रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 175 गीगावाट 2022 एंड 450 गीगावाट का हो जाएगा 2030 तक, 2030 तक। तो इस तरीके से कंपनी को काफी फायदा हो रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट भी इनके काम में आगे इनके लिए सहयोग कर रही है। गवर्नमेंट इनके लिए काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और इनके प्रोजेक्ट्स के लिए भी अच्छा खासा पैसा दे रही है एंड सब्सिडी भी मिल रही है। Hybrid tenders are increasing, gaining traction, wherein minimum wind capacity will be 33% of the contracted capacity. Floated 2 more tender, अभी इनके पास 2 more tender है। Significant market opportunity. मार्केट अपॉर्चुनिटी अच्छी है कंपनी के पास। द सेक्टर इज विटनेसिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मल्टीपल एग्जिस्टिंग प्लेयर एज वेल एज सीइंग एंट्री ऑफ प्लेयर्स लाइक JSW, O2 and creation of new renewable energy platform of investors backed by equity, private equity and pension fund like KKR, Edelweiss, Sakura. NTPC has announced a renewable energy target 32 गीगावाट का 2032 तक, and we see a significant opportunity to further leverage by being amongst the lowest cost producer of wind turbines globally. We are fully focused on and on track the launch 3.3 megawatt WTG and expect the prototype to be in place in the near future. The commercial production is 3.3 megawatt का shall commence simultaneously. तो बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी के प्रोडक्ट से। ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे 950 की मेगावाट की ऑर्डर बुक कंपनी के पास में है अभी इस समय। above order book will translate into revenue 7800 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ। मतलब आने वाले 2 साल के लिए कंपनी के पास में बेहतरीन ऑर्डर बुक है। इसके रिगार्डिंग आप कंपनी के शेयर को आने वाले 2 साल के लिए तो अपने पोर्टफोलियो में रख ही सकते हो अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। Technology, Inox Wind extend its existing 2 megawatt product offering with a launch of 3.3 megawatt wind turbines which are ideally suited for low wind regimes in India. The newly launched 3.3 megawatt turbine is globally operating proven platform which will further improve energy yields and reduce levelized cost of electricity. तो इनको टेक्नोलॉजी की मदद से भी कंपनीज को काफी फायदा हो रहा है। ऑपरेटिंग O&M स्ट्रॉन्ग एन्युटी मॉडल, O&M इनका ऑपरेटिंग मॉड्यूल बहुत ही अच्छा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। वर्किंग कैपिटल, अगर कंपनी का अगर वर्किंग कैपिटल आप देखेंगे इनके पास में 320 करोड़ का वर्किंग कैपिटल है कंपनी के पास में, जो कि एक अच्छा खासा है। कैश फ्लो अगर आप देखेंगे कंपनी के पास में कैश फ्लोज भी अच्छा है। अभी धीरे धीरे कंपनी अपनी नेट डेब्ट भी घटा रही है। अभी धीरे धीरे नेट डेब्ट कंपनी अपना घटाएगी आने वाले टाइम में। विंड ऑक्शंस, ये सारे के सारे कंपनी ने विंड ऑक्शंस लगाए थे इन पीरियड्स में जो कंपनी को मिलते हुए नजर आए। विंड सेक्टर गेनिंग स्ट्रेंथ, विंड सेक्टर जो है अब गेन कर रहा है स्ट्रेंथ को, यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छी खासी गेन कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ, अच्छी खासी प्रॉब्लम
पर इनके लिए फायदा होगा। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हम देखें यहाँ पे, इनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टोटल 1100 की इनके पास में मेगावाट की कैपेसिटी है। नेसल्स एंड हब्स, ब्लेड्स की 1600, टावर्स की 600। वेल पोजिशन टू टेक एडवांटेज of the growing market position to devote nacelles and tower capacity with minor capex. Tower capacity can also be outsourced depending on the project location. Manufacturing operations has been fully established. The newly set up plant at Bhuj, Gujarat and are in full swing. तो कंपनी का जिस तरीके के ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी है और कंपनी जिस तरीके से आगे काम कर रही है फ्यूचर के लिए विंड एनर्जी में, और जिसकी आगे बहुत अच्छी खासी डिमांड आएगी मार्केट में, तो क्लीन एनर्जी की जिस तरीके से, रिन्यूएबल एनर्जी की जिस तरीके से मार्केट में डिमांड आएगी आने वाले टाइम में, कंपनी उस पे फुली फोकस्ड है और प्योरली तरीके से उसी पे ही काम कर रही है, विंड सेक्टर पे। तो आने वाले टाइम में ये शेयर आपको बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप देखा जाए तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मिलेगी, आपको यहाँ से ग्रोथ मिल सकती है। तो फंडामेंटली तो शेयर बहुत ही बेहतरीन है। एक बार टेक्निकली हम इनके चार्ट पे और एनालिसिस करते हैं। एक बार मैक्सिमम चार्ट शेयर को ओपन कर लेते हैं। मैक्सिमम चार्ट अगर देखेंगे बिल्कुल लेटा हुआ चार्ट है शेयर का, जब से लॉन्च हुआ है तब से शेयर ने कुछ भी रिटर्न कमा के नहीं दिया है। लेकिन आप मार्च 2020 के बाद में अगर आप देखेंगे, शेयर ने यहाँ से 400% का रिटर्न कमा के दिया है और शेयर अभी धीरे-धीरे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा ही रहा है। 1 ईयर का अगर आप एक बार देखेंगे चार्ट, 236% का रिटर्न 1 ईयर में कमा के दिया है शेयर ने। आने वाले टाइम में ये शेयर आपको ऐसे ही धीरे-धीरे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि विंड एनर्जी का आगे कमाल ये दिखाता हुआ नज़र आएगा। विंड एनर्जी के जो इनके जो प्रोजेक्ट हैं, विंड एनर्जी का जो इनका काम है, आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ नज़र आएगा। सेक्टर पी और इनका पी दोनों ही माइनस में चल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको ये पॉजिटिव में इनका पी रेशो नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्निकली मैं आपको एक बार दिखाता हूँ चार्ट के सारे पैरामीटर। एवरी वीकली एंड मंथली एवरी इंडिकेटर पे आपको चार्ट बुलिश नजर आएगा। तो चार्ट की आप बुलिशनेस देख सकते हैं। लोअर बेस से चार्ट बेहतरीन तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा के उठ रहा है, मतलब यहाँ रिवर्सल के चांसेस दिख रहे हैं। शेयर के चार्ट पे रिवर्सल के चांसेस अब आने लगे हैं। ये रिवर्सल है, इतना परफॉर्मेंस शेयर ने नीचे से दिखाई है, तो ये रिवर्सल के चांसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ से। और आने वाले टाइम में ये कितना रिवर्स होता है वो तो आगे पता लगेगा। फेस वैल्यू शेयर की 10 है, शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। 76 रुपीज की बुक वैल्यू है शेयर की, और इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर ने अपना हाई भी लगाया है। एंड अभी थोड़ा-सा और मैं आपको एक बार बताता हूँ कि शेयर डिविडेंड देता है या नहीं। शेयर का डिविडेंड भी एक बार चेक कर लेते हैं। शेयर ने डिविडेंड नहीं दिया है और ना ही बोनस दिया है, लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरीके से ये शेयर परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा और ये इनका जो प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो है, ये पॉजिटिव होता हुआ जैसे ही नज़र आएगा, शेयर अच्छा खासा डिविडेंड आपको देता हुआ दिखेगा। एनुअली अगर आप देखेंगे तो शेयर का जो नेट प्रॉफिट है वो घटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स लगाए हैं और जो न्यू प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने लगाए हैं वो आगे आने वाले टाइम में उनसे परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर रखने वाले होते हैं, इनमें थोड़ा टाइम लगता है अच्छी परफॉर्मेंस आने के लिए। आरओई भी आपको धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से गवर्नमेंट का आगे फोकस है, जिस तरीके से कंपनी का आगे फोकस है विंड एनर्जी को लेके, क्लीन एनर्जी को लेके, तो आगे आने वाले टाइम में इसी एनर्जी की जरूरत मार्केट में है, गवर्नमेंट को भी पड़ेगी और आने वाले टाइम में हम सबको भी ऐसी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो ईएसजी का जो प्रॉब्लम है उससे बंदा निकलने की कोशिश करेंगे, ये लोग कोशिश करेंगे। क्लीन एनर्जी आगे आने वाले टाइम में इसी तरीके के प्लांट ये और लगाते हुए नजर आएंगे। तो फ्रेंड्स आने वाले टाइम में मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगी, विड्थ में इंप्रूवमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें इंप्रूवमेंट इनकी आई है। तो ये स्टॉक जो है आपको 150 रुपए तक के भी प्राइसेस आपको आने वाले टाइम में 1 से 2 क्वार्टर के अंदर दिखाता हुआ नजर आ सकता है।
लॉन्ग टर्म के लिए अगर 4 से 5 साल के लिए अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो 50% पर ईयर का रिटर्न ये स्टॉक आपको आराम से देता हुआ नजर आ सकता है। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरे चैनल से रिलेटेड रहा करेगी आपको आसानी से मिल जाया करेगी। थैंक यू।